Hello everyone, I am Ibadur Rahman. In this video, I am going to explain question number 5 of self-evaluation exercise of trigonometry class 11 mathematics. So let's start the video from 5th question. These questions are very important, so practice all the question. Already question number 1, 2, 3 we explained in previous video. So if you want, you can go through the link which is in your description box. Now in this video, we will start from question number 5. So let's start the video from 5th question. Prove that sin A upon 1 plus cos A plus 1 plus cos A upon sin A is equal to 2 cosec A. First of all, write the question, then we will discuss about the solution of question number 5. Okay, it is your question number 5. First of all, write the left hand side of question number 5. Only write just left hand side. Left hand side is equal to sin A upon 1 plus cos A, sin A upon 1 plus cos A, and next step as a 1 plus cos A upon sin A. Okay, we have to prove 2 cosec A. First of all, take LCM of both the fraction sin A and 1 plus cos A as a LCM. Clear? Now by cross multiplication we get the numerator sin A into sin A as a sin square A, and here 1 plus cos A whole square. Okay. Now apply the formula of A plus B whole square. What we can write here? A square plus B square plus 2AB. Na? Same as we can write here sin square A plus cos square A is equal to 1 plus cos square A plus 2 cos A. A square plus B square 2AB. A square means 1 square, already 1. B square means cos square A, and 2AB means 2 multiplied by 1 multiplied by cos. So 2 multiplied by 1 means 2 and cos A. And your denominator write same as 1 plus cos A into sin A. Don't break the bracket for denominator. Okay, now sin square A plus cos square A, just only sin square plus cos square is equal to 1, and already 1 is given. So you can write here sin square plus cos square 1 and 1. देखिए ये और ये मिलके sin square plus cos square is equal to 1, और ये 1 आपका ये है plus 2 cos A, and write denominator same as cos A 1 plus cos A and sin A. Clear? Now 2 plus 2 cos A. No change in denominator. 1 plus cos A multiplied by sin A. Okay. Take 2 as a common. 2 as a common means 1 plus cos A in bracket, and your denominator as a 1 plus cos A multiplied by sin A. Clear? Now 1 plus cos A cancel with 1 plus cos A, means 2 upon sin as your rest part. 1 upon sin means cosec, so 2 upon sin means 2 cosec. 2 cosec, it is your right hand side. Hence proved. यही शो करना था ना, कि हमको क्या शो करना था? पूरे वैल्यू 2 कोसेक A के इक्वल लानी थी. ये देखिए शो करना था कि 2 कोसेक है. तो सबसे पहला काम क्या किया हमने? लेफ्ट हैंड साइड जो था उसको नोट कर लिया. उसमें एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका न्यूमरेटर सेट हो जाएगा. और इसमें रूल लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का. ए प्लस बी होल स्क्वायर का रूल क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू मिलके आपकी क्या हो जाएगी? 1. और ये प्लस 1 जैसे था इसको वैसे लिख दिया. प्लस 2 कॉस ए, 2 प्लस 2 प्लस इज इक्वल टू 2 एंड 2 कॉस ए एज सेम एज ईयर. देखिए मिस्टेक क्या होती है, हम लोग 1 प्लस 2 प्लस 2 4 कॉस ए कर देंगे, तो ये काम मत करिएगा वरना आपका नंबर चला जाएगा. अब इसमें से 2 एज ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ कॉस ए बच रहा है. आपका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 प्लस कॉस ए था, 1 प्लस कॉस ए कैंसिल विद 1 प्लस कॉस ए, सो 2 अपॉन साइन एंड 1 अपॉन साइन मीन्स कोसेक, सो 2 अपॉन साइन मीन्स 2 कोसेक. यही शो करना था. राइट हैंड साइड इज ऑल्सो गिवन एज ए 2 कोसेक ए.
Clear? It is your question number 5th. Now move on. 6th question. In question number 6, given that prove 1 plus tan a whole square plus 1 minus tan a whole square is equal to 2 sec square a. So first of all, write the question number 6. Okay, it is your question number 6. First, write left hand side of 6th question. Only left hand side. 1 plus tan a whole square, 1 plus tan a whole square, and here 1 minus tan a whole square, tan a whole square. Now apply the formula here, a plus b whole square, and in second bracket a minus b whole square. What we can write here? Square of first term plus square of second term plus 2 multiplied by first term into second term means 2 tan a. Same as from second bracket a square plus square of second term minus 2ab means 2 tan a. 2 tan a. Clear? Yeah, okay. Now look here, 2 tan a plus 2 tan a minus cancel out. 1 plus tan square a, 1 plus tan square a, 1 plus 1 means 2, and tan square a plus tan square a means 2 tan square a. Clear? Now take 2 as a common, we get 1 plus tan square a. We know 1 plus tan square a is equal to sec square a. 1 plus tan square a is equal to sec square a. It is your right hand side, that's all. यही करना था. देखिए ये तो क्वेश्चन में शो करना था. 1 plus tan a whole square is equal plus 1 minus tan a whole square is equal to 2 sec square a. तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को नोट किया और होल स्क्वायर का रूल लगा दिया. यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का रूल लग रहा है और इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का रूल लग रहा है. दोनों को रूल लगाने के बाद प्लस tan 2a एंड माइनस 2 tan a कैंसिल हो गए. जो बचा आपका 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर. 2 एज ए कॉमन, 1 प्लस tan स्क्वायर a मीन्स sec स्क्वायर a. ये आपका रिजल्ट हो गया. क्लियर? नाउ सेम एज move on question number 7. It is your question number 7. Prove that sin theta multiplied by tan theta upon 1 minus cos theta is equal to 1 plus sec theta. देखिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको स्किप नहीं करिएगा, ज़रूर लगाइएगा. ठीक है, आप किसी भी लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़िएगा तो 100% ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. So first of all, write question number 7, then we will discuss about the solution of 7th question. Okay, it is 7th question. Clear? Sin theta tan theta upon 1 minus cos theta is equal to 1 plus sec theta. First of all, write left hand side, sin theta tan theta upon 1 minus cos theta. अब ज़रा सा देखिएगा, हमको जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा लाना है. तो एक काम तो ये करते हैं कि हमको tan नहीं चाहिए, तो tan की जगह पे क्या कर लें, साइन एंड कॉस का रूल चेंज कर दें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उससे कुछ इजी हो सकता है. एक ऑप्शन हमारे पास ये था कि इसको रेशनलाइज कर देते तो भी हो सकता है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते कि कैसे क्या बनना है. दो में से कोई भी काम आप कर सकते हैं. आइए देखते हैं क्या किया जाएगा. हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम कि इसको चेंज कर लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में. एक मेथड देख लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो दूसरा मेथड भी देख लेंगे, वरना वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा. फर्स्ट मेथड अप्लाई कर देते हैं, चेंज tan थीटा इंटू साइन अपॉन कॉस थीटा एंड योर डिनोमिनेटर एज ए 1 माइनस कॉस थीटा. क्लियर? नाउ यहाँ तो मल्टीप्लाई है तो कुछ एलसीएम होना नहीं है. क्या बनेगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब समझिएगा, जो हमको सेक थीटा प्रूफ करना है, सेक मीन्स 1 अपॉन कॉस, यानी कि कॉस तो रहना है. ठीक है, कॉस को नहीं ख़त्म करना है. साइन की वैल्यू पुट कर दीजिए इन टर्म ऑफ कॉस थीटा. सो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ये हो गया. अब देखिए,
1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखने के बाद हम एक रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 1 की जगह पे तो 1 स्क्वायर है ना, तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल विथ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, क्या रिजल्ट मिल गया आपको? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही रिजल्ट मिल रहा है ना। ये लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अगर से न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, मीन्स ऐसे लिख दें 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस बाई कॉस थीटा, तो चलेगा ना, कोई हरेश तो है नहीं। कॉस थीटा वापस एलसीएम होगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से कॉस कैंसिल विद कॉस थीटा, यानी कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा। ये हो गए आपके सेक थीटा प्लस 1, यही शो करना था। प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एज ए 1 प्लस सेक थीटा। देख लेते हैं राइट हैंड साइड क्या है। ये देखिएगा, राइट हैंड साइड एज ए 1 प्लस सेक थीटा। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते करते रिजल्ट किस फॉर्म में ला दिया? राइट हैंड साइड के फॉर्म में ला दिया। तो बस ये तो शो करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपका सेम आ जाए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू एवरीवन।